Hello friends, today we are going to discuss on the numerical on thermodynamics. Now we all know thermodynamics is one of the most important topic for all kinds of exam. No matter it is college exam, it is a board exam, and obviously it is going to be entrance or competitive exam. Because the weightage of this topic is very high. और अगर हम इस टॉपिक को देखेंगे यू विल फाइंड दैट इन दिस टॉपिक देयर आर टू, वन इज द थियोरेटिकल पार्ट एंड द न्यूमेरिकल पार्ट. बट इंटरेस्टिंगली थर्मोडायनामिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है. And I am always getting a lot of requests to many of my friends, my students, and they are asking me that why you are not doing a video only on the numerical of thermodynamics. जब मैंने थर्मोडायनामिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल करने की सोचा, देन आई फाउंड कि थर्मोडायनामिक्स के जो न्यूमेरिकल है ये हम तीन अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट सेगमेंट जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन, the maximum work done in isothermal and reversible process, how to calculate the enthalpy, how to calculate the internal energy change. ये सारे चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. Now segment 2, जैसे मैंने बताया, segment 2 purely we are going to dedicate on the thermochemistry, जहां पर हम न्यूमेरिकल करेंगे द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड एंथैल्पी, एसएस लॉ, मेनी मोर थिंग. And in the last segment that we are going to dedicate purely only on the entropy and Gibbs free energy change. तो ये हमारा 3 वीडियो होगा जिसमें आज हम लोग पहला वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं. So you can find the numerical on thermodynamics part 1, part 2 and part 3 that I'm going to tell you. Now in the part 1 जब मैंने ये सोचा, in every video हम थ्योरी बताएंगे आपको, that is going to the formulas, हम न्यूमेरिकल लेंगे, उसका सॉल्व करके बताएंगे आपको. बट अलोंग विद दैट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन एवरी वीडियो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू सम ट्रिक्स. नाउ दैट ट्रिक्स विल हेल्प यू टू फाइनलाइज द आंसर. जो आपको आंसर आ रहा है आपको पहले ही पता चलना चाहिए दैट ये आंसर हमारा सही है या गलत है. That is important for board exam, but also उससे ज़्यादा important है for the entrance, because in entrance exam you will find there are 4 options, so that will certainly going to help you. Okay, so let's start with our first tricks. So ये आज का जो वीडियो है इसमें हम पहले आपको थोड़ा सा ट्रिक्स बताएंगे. Okay, उसके बाद I am going to tell you some formulas जो आप लिख के रखेंगे, और based on that formula we are going to do solve few numerical, very very important numerical. But remember जो numerical हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, that numerical are of different types of numerical. Okay, based on this understanding आप हर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरे को I believe it. Okay, I believe it. Okay, so let me first talk about that the tricks about the solving numerical. So first tricks. Now you know that thermodynamics is a game of 2 player. 2 लोगों का खेल है. One is the system, another one is surrounding. Okay, another one is surrounding. So system plus surrounding. Okay, system plus surrounding will give you the universe. ये हमें पता है. So this is the basic. Now what happen, ये system और surrounding के खेल में system को जो भी मिलता है surrounding से, that we are going to consider as a positive. Okay, okay, जो मिलेगा system को positive, और सिस्टम जो देगा दैट इज नेगेटिव. ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसीडर एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वी आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, सो इट विल बी कंसीडर एज ए प्लस हीट, और इन शॉर्ट प्लस क्यू लिखेंगे. ऑन द अदर हैंड अगर सिस्टम ने हीट रिलीज किया, आई एम रिपीटिंग, अगर सिस्टम ने हीट रिलीज किया, सो इट विल कंसीडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो ये हीट रिलीज कर रहा है, सो दैट विल बी कंसीडर एज माइनस क्यू. ओके, सो एंडोथर्मिक प्रोसेस प्लस
एक्सोथर्मिक माइनस। सो वेयर दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अंडरस्टैंडिंग आपको लगेगा इन थर्मोकेमिस्ट्री जहां पर हम कंबशन की बात करेंगे, बट right now I am only talking about the sign convention. So this is one. Now second one is the work done, जिसकी ज्यादा जरूरत है आज के वीडियोस में, कि ये वर्क डन आर ऑफ टू टाइप। एक हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज पॉजिटिव, और एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, क्योंकि शब्दों से आपको पता चल रहा है कि सिस्टम काम कर रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। कंसीडर दिस इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है, ओके, जिसका इनिशियल वॉल्यूम है V1। अब ये सिस्टम तब काम करेगा जब वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज कैसे हो सकता है? वॉल्यूम चेंज दो तरीके से हो सकता है। एक, या तो एक्सपांशन, जहां पर इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, एक्सपांशन। अगर एक्सपांशन हुआ, हम उसको बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, और देन दैट इज अ नेगेटिव W। अब अनदर वन इज कंप्रेशन, जैसे इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम 5 लीटर, सो 10 ले 5 वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन। उसको कंप्रेशन में क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज प्लस W। ओके, लेट मी टेल यू। सो फर्स्ट वन, ओके, फर्स्ट वन एक्सपांशन, लेट मी राइट दिस वन, एक्सपांशन। ओके, एक्सपांशन अगर हो रहा है, सो वॉल्यूम V1 से V2 में गया, ओके, पिस्टन V1 से V2 में गया, सो दैट इज एक्सपांशन। एक्सपांशन मींस वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया, सो आई विल कंसीडर इट माइनस W। दैट इज इंपॉर्टेंट। इट मींस आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर अगर न्यूमेरिकल में हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन द इनिशियल वॉल्यूम, योर आंसर ऑफ वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव, must be negative. But on the other hand, if it is compression, okay, let's say it is a compression, now what happened? The initial volume was V1, now it is going to V2, you can see compression, so this is work done on the system, so that will be considered as plus W. Okay, so this is work done on the system and this is work done by the system. So अगर ये आप नोट डाउन करेंगे, एक्सपांशन हुआ तो आपका आंसर, W का आंसर नेगेटिव आना चाहिए। अगर कंप्रेशन हुआ तो आपका आंसर वर्क डन का पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। Okay, so with these tricks, now let me tell you that let write you the formulas that is needed for this video. Okay. So now the formula, okay, I'm already told you, एक छोटा सा ट्रिक्स बताया मैंने जो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Now I'm going to tell you the formulas that is needed to solve the numerical in this video. The first one, work done, W is equals to minus P external V2 minus V1. That is one. So what is P external? P external is the external pressure. V2 final volume, V1 initial volume. Okay, we have to understand this. Now number 2, if the work done in isothermal and reversible process, isothermal and reversible process, always remember we are getting W max, हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है, और इसका फॉर्मूला -2.303 nRT log base to the power V2 by V1 और -2.303 nRT log of P1 by P2। ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, ये हमारा फॉर्मूला। नाउ अगर न्यूमेरिकल में खाली आइसोथर्मल लिखा है, देन बेटर यू यूज दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल ये वर्ड लिखा है, देन प्लीज यूज दिस फॉर्मूला। ओके, इफ द वर्ड मेंशन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। नाउ द थर्ड फॉर्मूला आई कैन राइट, that is based on the first law of thermodynamics, that is delta U equals to Q plus W.
ओके, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इससे भी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, बिकॉज आई फाउंड इन सीईटी एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट ए न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस सिंपल इक्वेशन। ओके, हमने देखा ऐसा। एंड लास्ट फॉर्मूला व्हिच इज रीडेड अस इज समथिंग गोज लाइक डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये एक फॉर्मूला हो सकता है, और एक फॉर्मूला डेल्टा एच का भी लिखेंगे, दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ओके, दिस इज अनदर वन। ओके, दैट इज अनदर वन। सो यहां पर आपको मैं बता दूं, एंथैल्पी, डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, P is the pressure, delta V is the volume change like V2 minus V1. Delta N क्या है? Delta N is the change in mole number between the gaseous product and gaseous reactant. So that is very important to understand. Delta N क्या है? हम यहाँ पर हम solid और liquid की number of moles consider नहीं करेंगे. So number of moles of the gaseous product minus number of moles of the gaseous reactant. And last formula जो हमें लगेगा, इससे भी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, very interesting, and that is W equals to minus delta nRT. अब सवाल ये है कि सर ये वाला फॉर्मूला हम हमें बताइए. ओके, व्हाई दिस फॉर्मूला? लेट मी मार्क इट सेपरेटली. ये वाला फॉर्मूला W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन आर टी, ये किस लिए? सी, टू कैलकुलेट द वर्क इन केमिकल रिएक्शन. अगर कोई केमिकल रिएक्शन में वर्क डन कैलकुलेट करना है, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. हम इस फॉर्मूला के आधार पे एक न्यूमेरिकल करेंगे जरूर. ओके, सो आई वांट ऑल ऑफ यू प्लीज take a screenshot and write down this formula, very important. And now I am going to tell you, we are going to solve around 3 to 4 numerical or 4 to 5 numerical in this video of different type that going to help you to understand better. So we are starting with the first and very simple numerical. So for solving any numerical, I have told several times in my old videos, many videos on the numerical. मैं आज एक बार फिर बताता हूं कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नो मैटर इट इज फ्रॉम केमिस्ट्री और फ्रॉम फिजिक्स और फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, वी हैव टू फॉलो 3 सिंपल स्टेप. 3 सिंपल स्टेप हमें फॉलो करना है. द फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू राइट द गिवन वैल्यूज. क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू. सेकेंड वन, क्या निकालने के लिए बोला था, व्हाट दे आस्क टू कैलकुलेट, क्या डिटरमाइन करने के लिए बोला है, उसका फॉर्मूला लिखिए. एंड द थर्ड स्टेप इज यू जस्ट पुट द वैल्यू इन द न्यूमेरिक फॉर्मूला एंड डू द कैलकुलेशन. बट डूइंग द कैलकुलेशन, आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल द व्यूअर्स, that you have to know how to do the calculation with the help of log table book. That is very, very important. Remember, the log table book is helping us. Okay, ये log table book हमें मदद करता है कैलकुलेशन करने के लिए. So please don't go away from the log table book. And whenever you are doing log table book, you have to make sure that you should use the log table book and you should know how to use the log and anti-log both. दोनों जानना जरूरी है. ओके, चलिए हम हालांकि यहां पर बात करते हैं. सो 2 moles of an ideal gas. ओके, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ मोल्स 2 moles दिया हुआ है. See, I am writing the value with unit. Are expanded isothermally. खाली isothermally बोला है. They have not mentioned reversible. So यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें पता चल गया, and that is W is equals to minus P external V2 minus V1. यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. देखिए कितना आसान है. खाली isothermal बोला, वर्क डन, हमें ये करना है. From a volume of 15.5 liter, so that is our initial volume, 15.5 liter to 20 liter, so that is V2, 20 liter. Okay, against a constant external pressure of 1 atmosphere, so P external is 1 atmosphere. Okay, these informations are given. ये information दिया हुआ है. They have asked to calculate the work done in joule. तो चलिए, हमने वर्क कैलकुलेट करने के लिए बोला है, वर्क का हमने फॉर्मूला लिखा,
वैल्यू हमारे पास है, विल पुट द वैल्यू. सो माइनस, अच्छा बिफोर आई डू द न्यूमेरिकल, व्हाट हैपन हियर, 15.5 लीटर से 20 लीटर. सो एक्सपांशन हो रहा है. ओके, इनिशियल वॉल्यूम 15.5 लीटर से 20, एक्सपांशन हो रहा है. सो एक्सपांशन मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स W विल कम नेगेटिव. इसका मतलब मेरा आंसर नेगेटिव आना चाहिए. दैट आई गोइंग टू टेल यू. ओके, वही चीज मैंने सीखा, वही ट्रिक्स मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल करने से पहले ही हमें यह पता चलना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक्सपांशन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, W विल कम नेगेटिव. सो लेट्स सी, P एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेयर, V2 कितना है 20 लीटर, V1 15.5 लीटर. So this will come minus 4.5 liter atmosphere. Look at here, negative is coming. यही हमने सोचा था, आया भी है. It means perfect. But हमें लीटर एटमॉस्फेयर में नहीं पूछा है. They ask in joule. Now let me tell you one more formula, that 1 liter atmosphere is equals to 101.3 joule. Okay, so this is another formula. Okay, this is another relation that we need to remember. 1 liter atmosphere equals to 101.3 joule. Okay, so it means हम लोग, हमारा आंसर क्या होगा फिर, W equals to minus 4.5. okay, minus 4.5 into 101.3, ये आ जाएगा जूल में. और फिर जो भी आंसर है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट. ओके, सो दिस इज आवर so the answer will come this one, 455.8 joule. Okay, so this is the answer. So see the how simply, this is a numerical of 3 marks. एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का है. हाउ टू इजी दिस काइंड ऑफ सॉल्व, यही काम है मेरे इस वीडियो के द्वारा. मैं चाहता हूं कि ऑल माय व्यूअर्स शुड बी कॉन्फिडेंट when it talks about the numerical on thermodynamics. So now after this let me go for the next numerical problem. So now we are going to discuss the second numerical, and that is another different type of numerical. जैसे हमने बताया हमारे हर एक न्यूमेरिकल अलग अलग प्रकार के होंगे, और एक न्यूमेरिकल में जानबूझ के मैं बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर मैं देता हूं. इस न्यूमेरिकल को भी मैंने ऐसा ही बनाया है आपके लिए, ताकि एक न्यूमेरिकल से मैं काफी सारे बातें आपको बता सकूं. लेट्स सी, 12 ग्राम ऑफ हीलियम गैस. एक 2 इंफॉर्मेशन है इसमें. आप बोलेंगे सर 2 इंफॉर्मेशन कैसे, हमें तो बस 12 ग्राम दिख रहा है. मैं बोलूंगा नहीं, उसमें 12 ग्राम के साथ हीलियम, ये नाम भी तो आपको पता चल गया, और जैसे ही नाम पता चल गया मतलब उसका एटॉमिक मास भी हमें पता चल गया. दैट इज द ट्रिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो 12 ग्राम, सो इट मीन्स दैट मास ऑफ द हीलियम गैस इज गिवन 12 ग्राम. ओके, हीलियम गैस, सो द मोलर मास ऑफ हीलियम वी नो दैट इज 4 ग्राम पर मोल, ये हमें पता चल गया. are expanded isothermally and reversibly. See, 3 वर्ड है. expanded, expansion हो रहा है. expansion हो रहा है मतलब again work done by the system. आपको पता चलेगा. देखिए 10 मीटर क्यूब to 20 मीटर क्यूब. So V1 is 10 मीटर क्यूब, V2 is 20 मीटर क्यूब, और साफ साफ दिख रहा है कि एक्सपांशन हो रहा है. और अगर एक्सपांशन हो रहा है इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम मींस W का वैल्यू नेगेटिव आएगा. अगर आ रहा है इसका मतलब का आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा है आपने कुछ गलत किया है. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड इजीएस्ट वे टू क्रॉस चेक योर न्यूमेरिकल, योर अप्रोच. सो V1 to V2 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड. सो T का वैल्यू दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. कैलकुलेट द वर्क डन. अच्छा, साफ साफ बता के आ गया है कि भाई रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाई V1. क्यों V2 बाई V1 लिया, P1 बाई P2 क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है. सो हम V2 बाई V1 लेंगे. Now look at the व्हाट इज आई नीड फर्स्ट. आई नीड n.
n कैसे मिलेगा हमें? ओके, सो लेट मी राइट फ्रॉम दिस साइड, ओके, दिस साइड, ओके, n इज मास अपॉन मोलर मास, सो मास 12 ग्राम, मोलर मास 4 ग्राम पर मोल, सो 3 मोल। सो n का वैल्यू हमें आ गया, सो आई कैन राइट अगेन लाइक, ओके, लेट मी राइट, n इज 3 मोल्स। r हमें पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सवाल यह है, R के कई सारे वैल्यूज होते हैं, जूल में हो सकता है, आर्ग में हो सकता है, लीटर एटमॉस्फेयर में हो सकता है, कैलोरी में हो सकता है। ये वाला क्यों? बिकॉज वर्क है, वर्क कैलकुलेट करना है, वर्क इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी और हम लोग मोस्टली इसको जूल में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए R का ये वाला वैल्यू लिया। अब जैसे ही R का ये वाला वैल्यू लिया, आपको और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि टेम्परेचर यहां पर मेंशन है केल्विन में, आपका टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। क्या करना है? कन्वर्ट करना है। बाय एडिंग 273 इट इज बिकम 300 केल्विन, ये 300 केल्विन हो गया। सो हमारे पास टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन। देखिए कितने सारे चीजें, हमें कुछ डायरेक्ट वैल्यू दिया होता है, कुछ इनडायरेक्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए ये उस न्यूमेरिकल में जरूर होगा। इट्स नॉट फॉर थर्मोडायनामिक्स, नॉट फॉर केमिस्ट्री, for all kind of subject, all kind of numerical, that we need to remember. Okay, so ये वैल्यू हो गया। Now let me put the value directly. W equals to minus 2.303, n का वैल्यू हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली 3 मोल, ओके, 3 मोल्स। R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, ओके, इनटू log 20/10, ओके, और यहाँ पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मैं यूनिट नहीं लिखा किसी का, यह इसलिए नहीं। सो W का यूनिट आ जाएगा जूल में। ओके, नाउ इफ आई पुट द वैल्यू 2.303 इंटू 3 इंटू 8.314 इंटू 300, यहाँ पर आपको दिख रहा है log 2 का वैल्यू है 0.301, सो इफ यू कैलकुलेट माइनस 5187 जूल is the answer, or you can write minus 5.187 kilojoule is the answer. Okay, so this is how we are doing the numerical. इस तरीके से हमें numerical करना है। कैलकुलेशन पार्ट, लॉग टेबल पार्ट, किस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हैं, ये आपका एफिशिएंसी है। Okay, yeah, this is your value. So this is how we are doing the numerical. I hope you like this numerical very much. Now we go for third different type of numerical. Now the third and small and sweet numerical. This numerical is purely based on the first law of thermodynamics. Very simple. बट हमने अक्सर देखा है एंट्रांस एग्जाम लाइक एनडीए का एग्जाम हो गया या सीईटी का एग्जाम हो गया, ये लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। दैट इज बिकॉज ऐसे सवाल हो छोटे हैं बट प्योरली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग। एक स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग कैसे है वो पता चलता है। देखिए कैसे करेंगे। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन ए सिस्टम रिलीज 15 किलो जूल। एक सिस्टम क्या कर रहा है? 15 किलो जूल ऑफ हीट रिलीज कर रहा है। सो आई कैन राइट दैट Q इक्वल्स टू माइनस 15 किलो जूल। क्यों? क्योंकि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है ऑफ इट एंड डज 10 किलो जूल ऑफ वर्क एंड डज 10 किलो जूल और 10 किलो जूल वर्क कर भी रहा है। सो वर्क डन बाय द सिस्टम, सो 10 किलो जूल। ये दोनों वैल्यू हमारे पास है। रिलीज कर रहा है, सिस्टम से खर्चा हो रहा है, सो माइनस 15 किलो जूल एंड हीट एंड डज, सिस्टम काम कर रहा है कितना? 10 किलो जूल, सो माइनस 10। सो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? वेरी सिंपल, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q प्लस W। Now Q is what? Minus 15 kilojoule. W is minus 10 kilojoule. So Ryan's answer is minus 25 kilojoule. Okay, so this is the answer. Okay, that's so simple. So simple. But अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करता तो प्लस हो जाता।
अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो वर्क डन प्लस हो जाता. सो ये मैंने बार सारे एग्जांपल नहीं लिया. एज आई सेड आई विल टेक one example in different kind of numerical. So this is another example. Okay, so let me go for the next numerical. Okay, now we are going to discuss the fourth different type of numerical. This numerical purely on the enthalpy change. Okay, so again अगर आप देख रहे हैं सारे न्यूमेरिकल में एक ही तरीका मैं अपना रहा हूं. गिवन वैल्यू, फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, डू द कैलकुलेशन. यहां पर भी वही करेंगे. ओके, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे. An ideal gas expanded from a volume of 6 decimeter cube to 16 decimeter cube. So V1 is given 6 decimeter cube, V2 is given 16 decimeter cube against a constant external pressure of, so P का वैल्यू दिया हुआ है 2.026 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट डेल्टा एच आपको निकालने के लिए बोला है. इफ डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 418 जूल. ये सो हमारे पास वैल्यू देखेंगे तो साफ साफ पता चल रहा है कि वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी और डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस V1. कोई तकलीफ है ही नहीं न्यूमेरिकल में, सारे वैल्यू साफ साफ दिया हुआ है. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या नया है इस न्यूमेरिकल में? इस न्यूमेरिकल में जो नया है वो है यूनिट का खेल. ये डेसीमीटर क्यूब में है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, और ये जूल में है. सो क्या सीखना हमें? सबसे पहले यूनिफॉर्म यूनिट करना है. सबका यूनिट यूनिफॉर्म करेंगे हम लोग, वो मैं आपको सिखाऊंगा. यहाँ पर एक नया चीज सीखेंगे हम आपको. ये आप सबसे पहले नोट डाउन करके रखिए. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल. इससे पहले भी हमने लीटर एटमॉस्फेयर के साथ जूल का रिलेशन आपको मैंने बताया था. Now this is another important. 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल. So let's start. So 6 डेसीमीटर क्यूब को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं by multiplying 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब. 16 डेसीमीटर इंटू 10 to the power minus 3, ये भी मीटर क्यूब में आ गया. So सारे वैल्यू, ये मीटर, ये भी मीटर, ये जूल, ऐसे ही रखेंगे. Now let us put the value. सो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू है हमारा 418 जूल प्लस पी का वैल्यू हमारा क्या है 2.026 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके, इंटू V2 माइनस, सो V2 16 माइनस 6 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब. सो ध्यान से देखिए हमने किया क्या है. डेल्टा यू का वैल्यू जैसा था ऐसा हमने लिखा है. पी का वैल्यू दिया हुआ है 2.026 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही लिखा हमने. V2 माइनस V1 में आप देख सकते हैं 10 to the power minus 3 दोनों में है, वो मैं कॉमन ले सकता हूं. मैंने कॉमन लिया भी है. सारे वैल्यू मैंने यूनिट के साथ लिखा है क्योंकि इस न्यूमेरिकल में यूनिट का ही खेल है, मैंने पहले ही बताया. सो नाउ गो अहेड विद दिस. 418 जूल प्लस सी मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर हटकर यहां पर रहेगा खाली मीटर. 10 to the power minus 3 से 10 to the power minus 5 गया तो यहां पर रहेगा खाली 2. ओके, सो पुट द वैल्यू 2.026 इंटू यहां पर 10 स्क्वायर है और 16 माइनस 6, ये यहां से 10 मिलेगा. यहां पर न्यूटन बचा हुआ है, यहां पर मीटर बचा हुआ है. So now I can write 418 joule plus 2.026 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर मतलब जूल, यह हमने पहले ही बोल दिया है. So now you can see 418 joule plus 2026 joule. So the answer is 2444 joule. So this simple way, कितना सिंपल तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया. Okay, I think this is the beauty of understanding. Once we understand the thing, we can do easy way. Okay,
So this is, I want all of you, please write down the numerical, solve the numerical, and I already told you the most easiest way कैसे इसको याद रखना है, solve करना है. Now we go for the last numerical in this video. So let me talk the last and very unique type of numerical. Now why I said the unique, because I think for the first time we are going to discuss that how to calculate the work done in a chemical reaction. Okay, हमने इसके फॉर्मूला हमने आपको अलग से बताया था वीडियो के शुरू में. ओके, और वीडियो की ख़त्म भी हम उसी फॉर्मूला के न्यूमेरिकल से करने जा रहे हैं. ओके, सो लेट मी टेल यू दैट. कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग रिएक्शन. इस रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर. When 2 moles of HCl are used at a constant pressure and 423 Kelvin. So यहाँ पर टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है. ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने क्या बोला है, वर्क डन. मैंने आपको पहले ही बोला है न्यूमेरिकल करने से पहले ही हम बता सकते हैं कि हमारा वर्क डन का साइन क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा. चलिए यहाँ देख लेते हैं. सबसे पहले इस रिएक्शन में देखने वाली बात यह है कि सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, तो इसका मतलब सबका नंबर ऑफ मोल्स हमें कंसीडर करना है. ओके, अगर सॉलिड और लिक्विड में होता हम उसको कंसीडर नहीं करते. नोट डाउन इट. नाउ what is number of moles in the reactant part? 4 plus 1, 5 moles. So let me write 5 moles. Okay, 5 moles in the reactant. How many number of moles in the product? 2 plus 2, 4 moles. So आप देख रहे हैं 5 मोल से 4 मोल में जा रहा है. इसका मतलब वॉल्यूम हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम में जा रहा है. हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम में जा रहा है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है. और कंप्रेशन का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम. एंड इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो इट मीन्स आई एम एज्यूमिंग, आई एम श्योर कि मेरा W का वैल्यू आएगा पॉजिटिव. ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है. तो चलिए हम देखते हैं. Now for this kind of numerical we have very special formula. We told you that is W is equals to minus delta n RT or minus N2 minus N1 RT. R का वैल्यू हमें पता है 8.314, हम बिठाएंगे. T का वैल्यू is given. N2 minus N1 is something special that we need to discuss. Now in this numerical, see what they said. यहाँ पर 4 मोल HCl है, बट दे से 2 मोल HCl से आप रिएक्शन शुरू किया है. इसका मतलब आई हैव टू टेक 2 मोल HCl. नाउ अगर इसको 4 का 2 हो गया, मतलब मैं पहले जितना था उसका हाफ हो गया, आधा हो गया, तो हम सारे आधा करेंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस इट. सो HCl प्लस हाफ O2 गिव यू Cl2 प्लस H2O. बाय द वे मैंने एक रिएक्शन क्या लिखा है, मैंने गैसियस फेज में ही है, यही कंसीडर करके चल रहा हूं मैं. ना हाउ टू, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में N2 का वैल्यू है 1 plus 1 2. ओके, रिएक्टेंट में N1 का वैल्यू क्या है, 2 plus हाफ. 2 plus हाफ मतलब 0.5. सो दिस इज 2.5. सो N1 इज 2.5, N2 इज 2. ओके, ये हमें पता चल गया. सो नाउ लेट मी पुट द वैल्यू. माइनस N2 का वैल्यू क्या है, 2.5. ओके, N2 का वैल्यू है 2.5. N1 का वैल्यू क्या है, N1 का वैल्यू है 2. ओके, सो N2 का वैल्यू क्या है, लेट मी पुट द वैल्यू. N2 का वैल्यू है 2 मोल्स, यू कैन सी दैट. N1 का वैल्यू है 2.5. ओके, R का वैल्यू क्या है, 8.314. ओके, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. T का वैल्यू 423 केल्विन गिवन, यू कैन सी दैट 423 केल्विन. नाउ अब यूनिट अगर लिखेंगे आपको दिखेगा कि सारे कैंसिल हो रहे हैं. बाय द वे आई कैन शो यू दैट. ओके, मैं एक में आपको दिखाता हूं कि अगर हम यूनिट के साथ लिखेंगे कैसे जूल आता है. लुक एट हियर, माइनस. सो N2 इज 2, N1 is 2.5 mole. Let me write. This is the purpose. Okay. R.
8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ओके, इनटू टी का वैल्यू है 423 केल्विन। आप देखिए मोल इनवर्स कैंसिल, केल्विन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या? जूल। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हेन यू पुट द यूनिट यू ऑलवेज सी द यूनिट विल कम इन जूल, ओके, आना चाहिए। नाउ इफ आई कैलकुलेट यू कैन सी व्हाट हैपन, माइनस एंड दिस इज माइनस 0.5 into 8.314 into 423 joule, okay. Now the interesting part is, okay, minus plus, so plus 1758 joule. So this is the answer. आपने न्यूमेरिकल करने से पहले ही आपने मुझे बताया था या आपने सोचा था कि सर W का साइन इसमें पॉजिटिव आएगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, एंड यू कैन सी दैट प्लस, ओके। आई होप दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल रियली हेल्प फॉर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट to understand the numerical of thermodynamics in most easiest way, okay. So please tuned up with me. हम बहुत जल्दी पार्ट 1 हमने बनाया, हम पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे, ओके, ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।